Class 9th exercise 7.4 first question given that show that in a right angle triangle the hypotenuse is the longer side। आपको प्रूव करना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेंस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो लेट ABC be a triangle in which angle ABC is equal to 90 degree। It means क्या हुआ, ABC is the right angle triangles। okay, but you know it well by the angle sum property of triangle, sum of the all angle is 180 degree। तो you write here angle ABC plus angle BCA plus angle CAB is equal to 180 degree by angle sum property। You put the value of B 90 degree plus angle BCA plus angle CAB is equal to 180 degree। You transpose it, then BCA plus angle CAB is equal to 180 minus 90, you get here 90 degree, means it is the sum of two angle BCA plus CAB is equal to 90 degree। it means क्या हुआ कि ये दोनों एंगल जो एक्यूट एंगल्स हो गए, दोनों का सम ऑफ 90 डिग्री है। it means क्या हुआ, दिस एंगल्स एंड दिस एंगल इज acute angles। it means angle BCA and CAB are acute angles। it means angle BCA is less than 90 degree and angle BAC is also less than 90 degree। when angle BCA is less than ABC, देखिए BCA is less than ABC, therefore क्या हो गया, AB is less than AC। ठीक है, and when CAB is less than ABC, ये देखिए CAB is less than ABC, it means क्या हुआ, BC is less than AC। in both condition you see here AC is greater than BC and AB। दोनों कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है कि AC इन दोनों साइड से ग्रेटर हो गया। it means क्या हो गया, by it means hypotenuse AC is the longest side in the right angle triangles, hence proved। Question 2, in figure side AB and AC of triangle ABC are extend to point P and Q। ये देखिए AB and AC of triangle ABC extend to point P and Q, means AB को P तक extend किया और AC को Q तक extend किया है। ठीक है, also angle PBC is less than QCB। ये PBC ये एंगल इससे लेस है, तो एंगल PBC is less than एंगल QCB, ये गिवन है। and you have to prove that AC is greater than AB। AC को AB से ग्रेटर प्रूफ करना है। ठीक है, तो कम ऑन द सोल्यूशन गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC एंगल PBC इज लेस देन QCB, ये आपका गिवन है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ये देखिए इन ट्रायंगल ABC में ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल PBC इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ACB, यानी जो ये एंगल है इन दोनों एंगल के सम ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ACB, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ सी हियर it is the exterior QCB, it is also exterior of triangle ABC। तो QCB is equal to sum of CAB and ABC, ये जो है इन दोनों के सम ऑफ है। ओके, एंगल QCB is equal to एंगल CAB प्लस ABC। नाउ फ्रॉम 1 ये गिवन है PBC, एंगल PBC इज लेस देन QCB। ओके, अब PBC को आप क्या लिख सकते हो, ये देखिए PBC की जगह यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल BAC प्लस ACB, एंगल BAC प्लस ACB, एंड इन प्लेस ऑफ QCB यू कैन राइट एंगल CAB प्लस ABC, ये दोनों। अब यहाँ पे देखिए ये BAC और ये CAB दोनों इक्वल हैं, तो ये और ये कट हो जाएंगे। एंगल BAC और CAB, BAC और ये CAB दोनों सेम एंगल है, BAC एंड CAB ये एंगल है।
ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो व्हाट यू गेट आफ्टर कैंसिलेशन, यू गॉट हियर एंगल ए सी बी इज लेस देन ए बी सी। ओके, तो जब ये इससे लेस हो गया तो इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन दिस एंगल, देयरफॉर यू कैन राइट हेयर एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी बी। नाउ you can write, since ABC angle ABC is greater than ACB, तो AC is greater than AB, side opposite to greater angle is hence proved. Question third asking that in the figure, ये देखिए फिगर दिया हुआ है इस टाइप से, in the figure angle B is less than angle A, ये जो एंगल B है ये A से लेस हुआ, and angle C is less than angle D, angle C is less than angle D. You have to prove that AD is greater than BC, ये साइड ये AD is greater than BC आपको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी व्हाट इज द गिवन, गिवन दैट इन योर क्वेश्चन एंगल B is less than angle A and angle C is less than angle D, ये दिया हुआ है। You have to prove AD is less than BC, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ, सिंस एंगल B is less than angle A, ये जो एंगल B है ये लेस देन एंगल A है, तो B का अपोजिट साइड क्या हो गया, B का अपोजिट साइड आपका ये हो गया, तो OA इज लेस देन OB, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर होता है, तो एंगल B इज लेस देन एंगल A है, तो इसका अपोजिट साइड इससे लेस हो जाएगा, तो OA इज लेस देन OB, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। अगेन सेकंड कंडीशन गिवन दैट एंगल C is less than angle D, एंगल C is less than angle D, तो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हियर, OD is less than OC हो जाएगा, ये OD is less than OC हो गया। नाउ ऐड बोथ रिजल्ट्स वंस टुगेदर, तो व्हाट यू गॉट हियर, OA प्लस OD इज लेस देन OB प्लस OC, ये चीज़ OA प्लस OD इज लेस देन OB प्लस OC। ओके, तो व्हेन यू ऐड OA प्लस OD, see here in the figure OA plus OD, it means it is the AD, and here OB plus OC, it means it is the BC, so AD is less than BC. Okay, it's proved. Question 4 asking that AB and CD are respectively the smallest and longest side of the quadrilateral ABCD. ये देखिए ABCD दिया हुआ, तो इसमें AB एंड CD, AB स्मॉलेस्ट साइड है और CD लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। एंड यू हैव टू शो दैट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट इन द सोल्यूशन व्हाट इज द गिवन, तो गिवन इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is the smallest side and CD is the longest side, it is given, and you have to prove angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर लीजिए यहाँ पे, ज्वाइन AC एंड BD, ये देखिए AC को हमने डॉटेड लाइट से ज्वाइन कर दिया और BD को हमने डॉटेड लाइट से ज्वाइन कर दिया। अब इसमें एंगल डबल हो जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिनोट द एंगल बाय द न्यूमेरिकली 1 2, एंगल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, इससे क्या हुआ कि थोड़ी डिनोशन में प्रॉब्लम नहीं होगी डिनोट करने में। नाउ स्टार्ट द प्रूफ, सिंस AB इज़ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये AB जो है क्वाड्रिलेटरल ABCD का स्मॉलेस्ट साइड है, तो नाउ यू सी द ट्रायंगल ACB, ये ABC में आप देखिए इसको, AB स्मॉलेस्ट साइड है तो BC इज ग्रेटर देन AB हो जाएगा, तो इन ट्रायंगल ABC वी हैव BC इज ग्रेटर देन AB, ठीक है। तो BC इज ग्रेटर देन AB हो जाएगा, तो BC का अपोजिट एंगल 8 हो गया और AB का अपोजिट एंगल 3 हो गया, तो एंगल 8 इज ग्रेटर देन एंगल 3। ओके, ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया आपका। नाउ सिंस गिवन दैट CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये देखिए CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, ओके, ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD,
तो सी इन एंगल सी इन द ट्रायंगल ए सी डी, ये देखिए ए सी डी, तो सी डी लॉन्गेस्ट साइड हो गया, तो सी डी इज ग्रेटर देन ए डी। ओके, सी डी इज ग्रेटर देन ए डी, तो अपोजिट एंगल ऑफ सी डी क्या है, सी डी का अपोजिट एंगल 7 है और ए डी का अपोजिट एंगल 4 है, तो एंगल 7 इज द ग्रेटर देन एंगल 4। ये रिजल्ट सेकंड हमारा हो गया। बाय द सेम प्रॉपर्टी एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर। ओके, नाउ ऐड रिजल्ट 1 and 2। after adding result 1 and 2 we got here angle 8 plus 7 is greater than angle 3 plus 4। तो you see here angle 8 plus 7 मीन्स ये देखिए 8 plus 7 एंगल ए हो गया, ये टोटल एंगल हो गया, और 3 plus 4 ये टोटल एंगल सी हो गया। तो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। ओके, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। नाउ इज सी इन द ट्रायंगल ए बी डी, ये देखिए ए बी डी, ये पूरा एंगल, ये ट्रायंगल ए बी डी यहाँ से यहाँ तक। तो गिवन दैट ए बी इज द शॉर्टेस्ट साइड, ए बी शॉर्टेस्ट साइड हो गया, तो ए डी जो है ग्रेटर साइड हो गया। ठीक है, तो ए डी इज ग्रेटर देन ए बी, इट मीन्स क्या हुआ, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 6। ओके, ए डी ग्रेटर देन ए बी है ना, तो ए डी का अपोजिट एंगल 1 हो गया और ए बी का अपोजिट एंगल 6 हो गया, तो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 6। नाउ यू कंसीडर अबाउट ट्रायंगल बी सी डी, ये देखिए बी सी डी, तो बी सी डी में सी डी इज द ग्रेटर देन बी सी, सी डी इज ग्रेटर देन बी सी, तो इम्प्लाइज दैट एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 5। ठीक है, अब इन तीनों को आप देख लीजिए, इन दोनों को, थर्ड और फोर्थ को, ऐड एंगल थर्ड एंड फोर्थ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 6 प्लस 5। एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये और ये एंगल को जब ऐड करेंगे तो इससे ग्रेटर होगा, देयरफॉर एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो बी हो गया, एंड 6 5 को ऐड करेंगे तो डी हो गया, imply that angle B is greater than angle D, hence proved। Question 5th asking that in the figure PR is greater than PQ। ये देखिए ट्रायंगल PQR का फिगर दिया हुआ, इसमें PR जो है PQ से ग्रेटर है, एंड PS बाइसेक्ट एंगल QPR, ये जो PS है इसको बाइसेक्ट करता है, मीन्स ये और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, एंड यू हैव टू प्रूव एंगल PSR is greater than angle PSQ। You have to prove angle PSR is greater than PSQ। Okay, so first of all you write what is the given in your question, given that PR is greater than PQ and angle QPS is equal to angle RPS because PS bisect P angles। Okay, now proof in triangle PSQ, ये देखिए PSQ को आप ऑब्जर्व कीजिए, तो PSQ में ये जो एंगल है आपका एक्सटीरियर है, इन द PSQ PSR इज द एक्सटीरियर एंगल, तो इट इज द इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल QPS प्लस एंगल PQS, एंगल QPS प्लस एंगल PQS, ये एंगल इन दोनों का सम ऑफ हो गया, ये रिजल्ट 1 हो गया आपका। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ देयर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके, नाउ सर्च अबाउट ट्रायंगल PSR। इन ट्रायंगल PSR PSQ इज द एक्सटीरियर एंगल, ये इसका एक्सटीरियर हो गया, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल PSQ इज इक्वल टू एंगल RPS प्लस एंगल PRS, ये RPS प्लस एंगल PRS, इन दोनों का सम अप हो गया भाई। ओके, नाउ सिंस PR इज ग्रेटर देन PQ, इट्स गिवन इन योर क्वेश्चन, तो PR का अपोजिट एंगल्स क्या है, देखिए PR का अपोजिट एंगल्स PQR हो गया और PQ का अपोजिट एंगल PRS हो गया। ठीक है ना, तो एंगल सिंस PR इज ग्रेटर देन PQ, therefore angle PQR is greater than PRQ। okay, तो you can write it angle in the place of PQR, ये देखिए PQR की जगह PQS लिख सकते हो। ओके,
एंड इन द प्लेस ऑफ PRQ की जगह PRS लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज दैट PQS इज ग्रेटर देन PRS। ओके, नाउ इन द रिजल्ट वन PQS, okay, PQS, since implies that PQS is greater than PRS। अब इसमें हम QPS को दोनों साइड ऐड कर देंगे, ऐड QPS ऑन बोथ साइड। तो राइट हेयर एंगल PQS प्लस एंगल QPS इज ग्रेटर देन एंगल PRS प्लस QPS। ओके, सिंस QPS और PRS, सिंस QPS एंड SPR या RPS ये दोनों सेम है, ठीक है। तो एंगल PQS प्लस एंगल QPS इज ग्रेटर देन एंगल PRS प्लस RPS। QPS की जगह हमने RPS लिख दिया है, ठीक है, बोथ एंगल सेम है। तो व्हेन यू ऐड PQS प्लस QPS, ये देखिए PQS प्लस QPS इन दोनों को ऐड करोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो PQS प्लस QPS इज इक्वल टू एंगल PSR, ओके, एंड PRS प्लस RPS ये हो जाएगा PSQ के इक्वल एक्सटीरियर एंगल से, ठीक है ना, फ्रॉम 1 and 2। देयरफॉर एंगल PSR इज ग्रेटर देन PSQ, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 6, शो दैट of all line segment drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फिगर आपका बनेगा, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ये गिवन पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट है, इस पे ड्रॉन हो रहा है। तो जो ड्रॉन लाइन सेगमेंट है वो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, ठीक है ना। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, ये आपको प्रूफ करना है। तो लेट एल बी द एनी लाइन, ये एल हम एक लाइन प्रेजेंट करेंगे, लेट करेंगे, एंड पी इज द पॉइंट विच इज़ नॉट ऑन द लाइन। ये पी एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन एल पे नहीं है, ठीक है ना। अब पी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो एल पे, PM परपेंडिकुलर एल, ओके, एंड you take any point on the line L and join N to P, ठीक है। तो let L be any line and point P which is not on a line line L, PM perpendicular L and N is the any point on L other than M, okay। N को P से आप join कर दीजिए। To prove PM is the shortest line segment, ये PM जो perpendicular line है ये शॉर्टेस्ट होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ओके। नाउ प्रूफ इन द ट्रायंगल PMN, सिंस PM इज द परपेंडिकुलर ऑन L, तो इट्स मेक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इन ट्रायंगल PMN, एंगल PMN इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज PM परपेंडिकुलर L, ओके। इट मीन्स क्या हुआ, M 90 डिग्री हो गया। तो जब M 90 डिग्री हो गया तो ये जो N एंगल है ये 90 से लेस होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। तो ये 90 हो गया तो इन दोनों का सम ऑफ भी 90 होगा। तो सेपरेटली ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ओके। तो ये N जो है 90 से लेस होगा, ठीक है। तो सिंस एंगल M इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल N प्लस एंगल P इज 90 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। Therefore, angle N is less than angle M, एंगल N is less than एंगल M होगा। ये जब लेस देन 90 होगा तो M से ये लेस हो जाएगा, ओके। अब इसका अपोजिट साइड क्या है, PM है, ओके, और इसका अपोजिट साइड PN है, तो PM इज लेस देन PN, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट PM इज लेस देन PN, साइड अपोजिट टू शॉर्टेस्ट एंगल इज द शॉर्टर। तो यही आपको प्रूफ करना था। हैंस PM इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट फ्रॉम P ऑन L लाइन सेगमेंट, हैंस प्रूव्ड।